स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। वेलकम टू स्टडी IQ। माय नेम इज भुवन झा और आज मेरे साथ एक ऐसे स्टूडेंट कम नाउ टर्न्ड ऑफिसर जुड़े हैं जिन्होंने सिविल सर्विसेज साल 2024 में रैंक 695 के साथ अपना नाम सिक्योर किया है उस होली PDF में। तो विलंब नहीं करते हैं, लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू इट। लेट मी वेलकम श्री आर्यमान यादव, रैंक 695, UPSC Civil Services Examination 2024. Welcome Aryaman to this special discussion on Study IQ. Thank you, sir. Thank you for the well-versed introduction. I was not expecting that at all. अरे थैंक यू आर्यमान। बिफोर वी बिगिन, चलिए एक सवाल जो सबके जहन में होगा अभी, क्या अभी तक ये रिजल्ट सिंक इन कर गया है that eventually you are amongst that 1000 and a little above 1000 candidates in a country of 1.4 billion people who are going to be the part of the steel frame of the country? Sir, yes, sir. It is starting to slowly sink in. The thing is, it's just I believe that I am a statistical anomaly, as you mentioned the statistics right now, and it'll take a little while longer to process the things. And still, yeah, it does feel really great to be in the कुछ PDF बदला? finally. कल से कुछ बदला आर्यमान? जब रिजल्ट आए थे कल 22 अप्रैल को और आज हम लोग 23 अप्रैल में हैं। Has anything changed per se? सर, आई वुड से थैंकफुली कुछ नहीं बदला है, क्योंकि मैं पहले भी खुश ही था एंड माय फैमिली वाज आल्सो टेकिंग इट एज इट कम्स, एंड अभी भी कुछ नहीं बदला उसके बाद भी, एंड वी स्टिल हैप्पी, एंड आई बिलीव यार जस्ट अ जॉब, ऑल्दो it provides a lot of opportunities, but it's still a job, and professionally the things that happen professionally should not affect your personal life, and Right. I'm thankful that nothing has changed. Oh, that's very well said. Aryaman, take us through where were you when the results were announced? क्योंकि करीब 2-2:30 बजे results announce हुए थे। तो कैसे आपको पता चला कि आपका selection हो गया है? I was actually I was sitting right here where I'm sitting right now. I was trying to focus on the next prelims and trying to revise some stuff that I had forgotten over the past year. Till then, there was some of the few Telegram channels. They tell that the result is coming in an hour and a 2 hours, so your heartbeat just goes up every time a notification is pushed to you. And then some guy uploaded a PDF, and I thought it was a fake PDF, but then a friend of mine called. I was just trying to get onto the UPSC website. I was not successful on that, given that there was heavy traffic there. And a friend just called and told that your name is there. And I was like, all right, are you sure? And then I asked for the surname, and then I asked for the roll number, and then I definitely yours only. And then all right, cool. So That's finally get something there. And yeah. Yeah. yes, it's a feat that is worthy of accolades and congratulations, Aryaman. But moving forward, चलिए Thank you, sir. Thank you. आपके दिमाग में ये आइडिया कहाँ से आया, ये मोटिवेशन कहाँ से आया कि हाँ भाई अब हमको सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करना है? वो एक स्पार्क, एक चिंगारी कहाँ से आई आपके अंदर? Sure, yes, sir. So बचपन से actually father भी was in the Indian Forest Service. He's retired now, and I used to see him the job satisfaction he would derive, and the gleam in his eyes, as they say, whenever he would bring about some change in his field or in his division. I would say like I want that for myself as well, and the change in society that brings about it is just exception and not there in any other service. Or any other job occupation or such like that. तो उसके बाद फिर 12th तक तो is like all focused on कि JEE करना है, and then JEE हो गया, उसके बाद got a very good college, all thanks to God. And then उसके बाद भी कॉलेज में भी नहीं लगा था कि करेंगे, उसके बाद भी लग रहा था कि फाइनेंस में जाएंगे, यहाँ जाएंगे, कुछ स्टार्टअप वगैरह का ट्राई करेंगे. उसके बाद फिर ड्यूरिंग माय जॉब आफ्टर ग्रेजुएशन मुझे लगा कि नहीं, सिविल सर्विसेज वो एक्सपोजर और वो डोमेन एक्सपीरियंस और वो जो कैनवस वाइट कैनवस रहता है वो नहीं मिलने वाला है कहीं भी. So then I tried my hand at UPSC. Aryaman, that makes the two of us, by the way. आपके पिताजी भी, you just told us, you informed us, he's from the Indian Forest Service, super animated. And my father too, he retired from the Yes. Indian Forest Service. So that makes us, that both of us come from this IFS backgrounds. Uh, But okay, now that you have yes, decided, sir. जब आपने डिसाइड कर लिया कि अब हमको सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन देना है, ऑब्वियसली एक चीज जो एक सक्सेसफुल कैंडिडेट और एक ऐसे कैंडिडेट जो शायद अनसक्सेसफुल रहते हैं, चाहे जिस भी स्टेज पे हो,
वो है कि एक स्ट्रैटेजी के अंदर एक सक्सेसफुल कैंडिडेट पढ़ाई करते हैं। तो आपने क्या स्ट्रैटेजी अपनाया स्पेसिफिकली फॉर प्रीलिम्स? क्योंकि आर्यमन, आई एम श्योर यू विल अग्री कि प्रीलिम्स इज बाय फार द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ योर एंटायर एग्जामिनेशन। टू गेट फ्रॉम दैट 3-4 लाख टू 15,000 का जो एक सॉर्टिंग हो रहा है, सीविंग हो रहा है, वो काफी डिफिकल्ट होता है। तो उसके लिए आपने कैसे स्पेसिफिकली प्रिपेयर किया? Hmm. Definitely. So in the first attempt, it was basically my sole goal was to get through prelims because मुझे डर लग रहा था कि मेरा prelims भी नहीं होने वाला है. And for that बहुत ही basics में गया था मैं. For geography, जैसे आपने बोला कि strategy बनानी रहती है, तो जी। strategy आप जैसे data analysis में strategy आप सिर्फ data से बना सकते हैं. हम्म, And data आपके पास सिर्फ PYQ है कि that is basically a communique from the UPSC of what they expect people to go, like what they expect people to read and what they expect their selected few officers to know राइट, basically. तो राइट। उसमें फिर मुझे समझ में आया कि फॉर एग्जांपल इफ वी पिक अप क्वेश्चंस फ्रॉम ज्योग्राफी, अपार्ट फ्रॉम क्वेश्चंस लाइक व्हिच वाटरफॉल इज वेयर, वो सब तो चलो अनॉमली क्वेश्चंस हैं. बहुत सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी की बुक से आते हैं. राइट। तो that became my strategy कि एनसीईआरटी की बुक से, it was not a very big book. I think I have it on my desk here, 100 odd pages or so for ये part 1 and 80 odd pages for the part 2. हम्म, Not a very big book, 180 pages है. तो the commission expects you to you're well versed with geography. ऑफ तो कोर्स। basic geography तो आती होनी चाहिए. For history, uh, given my experience, मैं उतना अच्छा तो कर नहीं परफॉर्म नहीं करता हूँ हिस्ट्री के क्वेश्चंस में. बट एनीवे, जो आर एस शर्मा की बुक है एंड जो बेसिक स्टैंडर्ड सोर्सेज, आर एस शर्मा की बुक हो गई एंड देन सतीश चंद्रा की बुक हो गई, ये हो गया एंशियंट एंड मेडिवल के लिए. एंड मैं स्पेक्ट्रम फॉलो करता था मॉडर्न हिस्ट्री के लिए. ऑल्दो आजकल क्वेश्चंस वी सी कि स्पेक्ट्रम से आते भी हैं तो बहुत 2-3 चैप्टर्स मिला के आते हैं क्वेश्चंस. जी, जी। तो एक ये स्ट्रैटेजी, एनीवे यू हैव टू पुश थ्रू इट, यू हैव टू पुश योरसेल्फ कि वो पढ़ने का मन नहीं करता है, बहुत बुक बड़ी बुक है, बट स्टिल यू हैव टू पुश थ्रू इट. एंड अगेन फॉर लक्ष्मीकांत के लिए तो आई डोंट हैव टू से एनीथिंग. पॉलिटी मींस लक्ष्मीकांत. राइट, And basically, Lakshmikant, because it's very much derived from the constitution itself, so people think that questions are coming from Lakshmikant. Actually the questions are coming from the constitution of India. तो आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो, लक्ष्मीकांत पढ़ो, एक ही बात है. कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते नहीं बनता है, वो लॉयर्स लैंग्वेज में लिखा हुआ है, थोड़ा एडवोकेटिव वाली लैंग्वेज है, उसमें नहीं हो पाएगा. एंड देन सर एनवायरनमेंट एंड एसएनटी, तो आई थिंक बेसिकली यू हैव टू हैव अ जनरल अवेयरनेस अबाउट स्टफ. For example, last year a question came on bioreactors. राइट। Now solid waste management has been in the news for a long time in the country. So definitely you'll have to know about that. And it's also, you can pick up any compilation for SNT and environment. I did the same. Any compilation from Study IQ, so the candidates can pick up. It would be helpful for them. And I would also say that for prelims, you don't have to solve each and every question. हाँ, uh, you uh, you have to practice the mocks, and not for the mocks mein, because I was getting around what, last attempt maybe I was getting mocks mein, I used to get 65 marks sometimes out of a 200. तो वो कभी कभी बहुत रैंडम क्वेश्चंस आ जाते हैं मॉक्स में, जिनका कोई रेलेवेंस नहीं रहता एग्जाम के लिए. आपको बेसिकली कैंडिडेट्स को ये देखना है कि मॉक्स में आर यू एबल टू रन योर ब्रेन फॉर 2 hours एंटायरली. राइट, जब तक आपसे आपसे इन्विजिलेटर आपका पेपर नहीं ले रहे, तब तक आप क्या क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो, क्योंकि फटीग आती है 1 hour के बाद, डेफिनेटली फटीग आ जाती है एग्जाम हॉल में. तो वो राइट। प्रैक्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंट लगी थी मुझे मॉक्स के लिए. और वहां मुझे हेल्पफुल लग रहा था कि मॉक्स में अगर मैं वही कोई स्कूल में जाके गर्मी में बैठ के एग्जाम दे रहा हूँ और जी, 2 hours अपना ब्रेन रन कर ले रहा हूँ, तो वो एक ऐसे मसल मेमोरी टाइप की डेवलप हो जाएगी कि मैं वहां पे फिर जो रेलेवेंट क्वेश्चंस होंगे उस पर अटेम्प्ट करूंगा. तो वो राइट। मुझे लगा कि अच्छी स्ट्रैटेजी रहती है वो. तो इस हिसाब से मॉक्स देखेंगे तो बेटर रहता है. आई वुडंट से कि मॉक्स के पीछे आप एकदम मार्क्स के लिए जाएं कि मुझे तो 100 मार्क्स प्लस मार्क्स ही चाहिए. देयर इज वेरी लिटिल कोरिलेशन between the marks you get in the prelims ke mocks and the marks you get in the main prelims exam. ऑफ कोर्स, I राइट। have seen this across my attempts, and I can, well, in my limited experience and my limited knowledge, I would say that there is very little correlation. The basic funda of mocks is that you sit there for 2 hours and get your brain running for those 2 hours. That's basically, I would say, the strategy for prelims. And PYQ, I would say कि अगर मॉक्स देने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है तो फिर PYQ कर लो, उससे भी अच्छा हो सकता है. राइट। यू यस रेज सर. वेरी फेयर पॉइंट आर्यमन, आपने बहुत फतेह की बात उठाई है
कि हमको मॉक्स को सिर्फ उसके स्कोर के वैल्यू पे नहीं एनालाइज करना है, उसके अंदर का कंटेंट को सर। समझना है कि हमारे वीक एरियाज क्या है, स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या है। दैट यस ब्रिंग्स सर। मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन आर्यमान, कि आपने मॉक्स यानी कि प्रैक्टिस पेपर्स कब से लगाना शुरू किया? क्योंकि ये एक क्वेश्चन भी रहता है किसी भी बिगिनर के मन में कि हम जैसे जैसे सब्जेक्ट्स करते जा रहे हैं, एंड वी हैव एन नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इन दिस, सो व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट द क्वेश्चन सॉल्विंग प्रोसेस? Very pertinent question, sir, and it's a very personal question. Some people think कि एक बार we cover the entire syllabus and then we start mocks, which is a very idealistic thing according to me. You will never cover the syllabus. Of I have course. never covered the syllabus. I can say that frankly, both for prelims and for mains. I would say in between, for example, at the end of the Lakshmikant, there are PYQs. So you can just pick up the PYQs from the end of the Lakshmikant and solve them. Apart from that, for example, in polity, an objective for polity also comes by Lakshmikant sir's publication only. You can, and that is chapter wise segregated. So you do that chapter and do the objective questions from that book. So that can, and this is not for, I'm not saying that this would, the questions would reappear in the prelims exam. This is just for your practice and just to get your brain running so that you don't get bored, because reading is very boring. According to me, it is very boring. Reading is very boring until you're doing or you're solving something. That's just the engineer in me talking. So if people get bored, then questions are the saviors because they get your brain running, they get you curious about things you have to do. Right. For coming back to the question, like when one should start the mocks, I would say at least after one reading. First few mocks would be terrible. I still remember my first mock. It was of ancient and medieval and art and culture. I got 47 out of 200. Was completely dejected, and it's just the process. So ऐसे धीरे धीरे you'll revive the process. You'll revive your marks, and you'll learn that marks do not matter in mocks. What matters is, are you thorough with the syllabus? Are you able to solve the PYQs, and are you able to sit there for 2 hours? That's, I think, the takeaway for me from the mocks. ओह एक्सेलेंट, ब्रिलियंट आर्यमन। आई एम श्योर हमारे जो फ्रेशर्स, जो सारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं साल 2026-27 के लिए अटेम्प्ट करेंगे, प्लीज टेक डाउन नोट्स फ्रेंड्स, बिकॉज यू आर Sir. एक्चुअली लिसनिंग, एंड इफ आई मे यूज द वर्ड कैजुअली, फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। यू आर लिसनिंग फ्रॉम समवन जिन्होंने वो प्रोसेस को अप्लाई किया है, उस स्ट्रेटेजी को अप्लाई किया है और उसके बाद रैंक लाया है। आर्यमान, लेट मी कंटिन्यू दिस डिस्कशन। और अब एक मेजर मुद्दा जो हर फ्रेशर के दिमाग में होता है कि भाई ऑप्शनल कैसे चूज किया जाए। ऑप्शनल पढ़ना तो सेकंड स्टेज है, पहला मुद्दा होता है कि चूज कैसे करें। आपने अपना ऑप्शनल, यू टोल्ड मी, वाज Sure. sociology. So how did you finally Yes, zero sir. in on the subject? Yes, sir. Sir, again, I can recall the days where it was so difficult to choose an optional. Someone would say that then the rank list would come. I'm not aware what the toppers optional is right now, but I'm definitely sure that it would reflect in 2 to 3 years time. कि वही लोग लेने लग जाते हैं, सब वही लेने लग जाते हैं जिनकी रैंक आ रही है, तो उन्हीं का देख के लेने लग जाते हैं. That was also, I would not say it, I would be lying if I say that I did not think like that. I Right. also thought like that as well, because that is a very practical thing to do. For example, I'm very much into history, पर उतना आई डोंट थिंक उतना एक्यूमेन है मेरा कि मैं इतना सब याद कर लूं. तो दैट वे आई वाज एबल टू एलिमिनेट हिस्ट्री. एंड फिर एंड में 5 to 6 मैंने सीनियर से बात करके, जो मेरे कॉलेज के सीनियर्स है जिनने ऑलरेडी रैंक लाई है, एंड कुछ सीनियर्स जिनसे और मेरी डिस्कशन हुआ था, उनसे बात करके आई वाज एबल टू लिस्ट डाउन 5 to 6 ऑप्शनल्स. There were 4 to 5 parameters. One was ki, how interested I am, which is basically the biggest parameter. As Right. per me, as for me, some would say that the marks you get is the biggest parameters. That is the second, like very close to the interest. Second would be how is the checking in that, or how is the evaluation process Right. in that particular subject that you like. Third would be material availability. Right. बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइमलाइन है ये एग्जाम की. आप नहीं बन सकते हैं टीचर, आपको स्टूडेंट ही बनना पड़ेगा. दैट इज माय ओपिनियन अगेन. if people do not agree with that, I'm perfectly fine with that. But जैसे मुझे लगा, मैंने कुछ शुरुआत में ऐसा ट्राई किया कि मैं सोशियोलॉजी में मैं खुद ही बन जाता हूँ थिंकर, मैं इतना पढ़ लेता हूँ, क्या ही प्रॉब्लम होगी. वहां प्रॉब्लम होती है कि 250 वर्ड में लिखते नहीं बनता है फिर. जी, जी। तो अब मैं मुझे फिर एंड में यही लगा. एंड एक मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड है, उनने पिछले साल रैंक लाई थी. उनने भी यही बोला था कि यार तुम स्टूडेंट ही रहो,
क्यों फिलोसोफर बनना है, नहीं टाइम मिलेगा, फिलोसोफर बुक्स लिखते हैं। जी। एल्बर्ट कामू ने मेथ ऑफ सिसिफस लिखी थी। एल्बर्ट कामू यूपीएससी नहीं दे रहा था, उसके पास था बहुत ज्यादा स्कोप, बहुत सारा लिखने के लिए। राइट। तो आपके पास नहीं, आपको वो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में छोटा लिखना है, तो मटेरियल उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना क्रिस्प आपके टीचर्स कितना क्रिस्प आपको पढ़ा रहे हैं, कि आपके पास कितने छोटे नोट्स हैं जी। एंड में। छोटे एज इन आई वुड से कि 10-12 पेज के, मतलब 100-150 पेज में भी, आई वुड से 100 to 150 पेजेस, आई वुड से दैट कम्स इन द स्मॉल नोट्स क्राइटेरिया कैटेगरी हाँ। according to me. हम्म। This was the third parameter. Fourth was the length of the syllabus, because 5 days में you have to go through the entire main syllabus राइट। of this optional subject. तो बहुत लंबा सिलेबस होता है। फॉर एग्जांपल मुझे पीएसआर का सिलेबस बहुत लंबा लगा था, हम्म। और थोड़ा मुझे लगा था कि यार सिर्फ तो सिर्फ पॉलिटिकल साइंस ही है, तो आई eliminated PSIR by the way from that, and I was also interested in English literature, although I have a background in mechanical engineering. हम्म। That was something I wanted to do, but again कि उसमें थोड़ा material availability कम है, मुझे खुद नहीं आता, and I would be competing with someone who is an MA in English or a PhD in English literature, तो श्योर। वहाँ मैं obviously beat हो जाता। In this case, again, and I forgot about this, mechanical engineering was also there. Although फिर उसमें MTech के subjects आ जाते हैं, जी। एंड कुछ कुछ चीज़ों में मैं उतना वेल वर्स नहीं था। फॉर एग्जांपल डिज़ाइन ऑफ मशीन्स में मैं उतना वेल वर्स नहीं था अपने ग्रेजुएशन में भी, तो आई जस्ट ट्राई टू अवॉइड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। हाँ। एंड देन बेसिकली वही, फिर उसके बाद अगेन आई वुड रिपीट माई सेल्फ कि सोर्स पे ही था, एंड ये सब द 4 to 5 पैरामीटर्स आई मेंशनड, उसको लेके आई केम डाउन टू सोशियोलॉजी। हाँ। एंड बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे। ईच यूनिट इज बेसिकली अनदर ऑप्शन इन इटसेल्फ। उसमें वी स्टडी रिलीजन, वी स्टडी सोसाइटी, वी स्टडी पॉलिटी इटसेल्फ, वी स्टडी स्टैटिस्टिक्स, नॉट वेरी मच बट वेरी लिटिल ऑफ स्टैटिस्टिक्स वी स्टडी, एंड एनलाइटनमेंट पढ़ते हैं, सो इट गिव्स अ वेरी गुड बेस। तो फॉर जीएस सब्जेक्ट्स एज वेल, और बहुत इंटरेस्टिंग भी लगा मुझे सोशियोलॉजी, तो आई वाज लाइक श्योर आई विल टेक दिस। And yeah, that was my entire process of how to choose an optional, and I think many of us go through this process. Many of us also change the optional. I had a friend who changed the optional from philosophy to geology, worked wonders for him. तो आई वुड ऑल्सो से कि इफ यू आर थिंकिंग कि आपने एक बार ले लिया तो चेंज नहीं कर सकते, आई वुड कंप्लीटली डिसएग्री विद दैट ओपिनियन। इफ समवन इज वाचिंग दिस एंड समवन इज स्टक इन एन ऑप्शन, आई वुड से if you can take a break, or if you are confident, do not take a break. Just switch to the optional that you desire, and that can work wonders for you as well. So राइट। switching optional, I कोर्स wouldn't say करेक्शन। it's a taboo. You can switch optionals. आर्यमान, यू आर Yeah, सजेस्टिंग कि कोर्स exactly. करेक्शन Yes, करें। yes, definitely. करेक्ट। राइट। नाउ कमिंग टू द No, नेक्स्ट क्वेश्चन, definitely. आपने If आपने you बहुत think that course correction is required. राइट, आपने एक बहुत फेयर Yeah, पॉइंट कहा आर्यमान yeah. कि इंटरेस्ट होना चाहिए, साथ में Sure. एक्यूमेन भी होना चाहिए, एंड Hmm. देन पुट इन द रिक्विजिट एफर्ट्स। Hmm. क्योंकि एंड लेट मी शेयर दिस विथ यू, Hmm. काफी दफा स्टूडेंट्स जो मैंने देखा है कि वो भेड़ चाल में फ्लेवर ऑफ द सीजन पिक करेंगे, जैसा अभी यू वर रेफरिंग टू इट, कि अभी अगर एक Exactly. सब्जेक्ट चल रहा है तो हम आंख बंद Hmm. करके सब्जेक्ट उसको चूज कर लिया, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट दैट वी मे नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन द, No. और फिर 2-3 महीने बाद देन वी आर स्ट्रगलिंग विद दैट Yes, sir. पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट Hmm. क्वेश्चन आर्यमान, कि आपको कितने महीने वुड यू सजेस्ट दैट अ स्टूडेंट डिवोट फॉर यूपीएससीज ऑप्शनल प्रिपरेशन? क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स के मन में रहता है कि भाई हम फलाना Hmm. ऑप्शनल 3 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं, या ये वाला ऑप्शनल 2 महीने में कर सकते हैं। इज दैट एक्चुअली अ फीजिबल टाइम फ्रेम, और यू आर लुकिंग एट अ लॉन्गर टाइम? डेफिनेटली अ लॉन्गर टाइम फ्रेम सर। 3 months में तो मतलब आई वाज अ स्लो लर्नर, आई एम अ स्लो लर्नर राइट नाउ एज वेल। आई वाज नॉट एबल टू कंप्लीट 3 months में, ऑल्दो सम faculties claim that you can do sociology in 3 months. I would just advise against that. 3 months में you'll just have a superficial knowledge. Although, yeah, I would not say that if you have qualified prelims and you have sociology and you don't know nothing, I would not say to skip mains. I would say that yeah, it is possible to do sociology in 3 months, but if you have to have a deep understanding, if you need to have a deep understanding, you'll at least require 5 to 6 months for sociology with a dedicated teacher or something. However, if you have to do it, like प्री निकल जाता है, बहुत सारे लोग के साथ होता है कि ऑप्शनल पढ़ते नहीं है प्री के पहले। मेरे साथ भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसा ही हुआ था कि मैं नहीं पढ़ा था ढंग से ऑप्शनल, बट कर सकते हो आप। ऐसा मतलब ऐसा ऑप्शनल है सोशियोलॉजी की, अगर जरूरत पड़ी तो 3 months में हो सकता है, बट थोड़ा टाइम फ्रेम, आई वुड से 5 to 6 months इज वेरी गुड, वेरी decent time to option to prepare for sociology.
And did you get a chance to start your answer writing practice? Did you go with a sizable number of answer written before the examination? I tried to अगेन वो मॉक्स और पीवाईक्यूज में डायलेमा होता है मेंस के समय. आई वुड अगेन सजेस्ट कि पीवाईक्यूज कर लीजिए क्योंकि पीवाईक्यूज रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है मॉक्स से. जी. एंड ये मैंने खुद को भी समझाया था इस बार में जिसमें सिलेक्शन हुआ है मेरा कि मैं पीवाईक्यू कर लेता हूँ. तो पीवाईक्यू मैंने एक उसको एक अपना सेपरेट बुकलेट ही बना ली थी मुझे कि बेसिकली वो मेरा जैसे सिलेबस है. तो Uh-huh. सिलेबस के अलावा वो एक मेरा दिस वाज एन ऑक्सिलरी सिलेबस फॉर मी द पीवाईक्यूज. Mhm. So that became like a small notebook that I have to read before going to the exam, and that helped a lot because PYQs do get repeated. But Ariman, जैसा PYQs का importance, I think that needs to be communicated to our audience. Basically, Hmm. it is telling us about the mind of the examiner, है ना, कि आपके सब्जेक्ट से Yes. कौन सा पार्ट वो ज्यादा Hmm. important है. वहीं आपको पता चलेगा जब आप PYQ बार-बार लगाते हैं. So, did you also Hmm. Yes, sir. analyze the PYQs and then fine tune your preparation accordingly? Exactly. Yes. So for both pre or mains, I think without looking at the PYQs, and not only for UPSC, हम लोग जितना मुझे याद है हम लोग ग्रेजुएशन के समय भी अपने सीनियर से पीवाईक्यूज मांगते थे सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए जी. because it is very important as you said very rightly that it is a guide to the examiner's mind. Mhm. आपको ये देखना पड़ेगा फॉर एग्जाम्पल वैदिक हिस्ट्री आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रही है जी. फॉर मेंस एग्जामिनेशन. अगर आपको वैदिक एरा का नॉलेज नहीं होगा तो फिर बट वैदिक एरा का नॉलेज बहुत बड़ा सिलेबस है हिस्ट्री का कैसे पता होगा. पीवाईक्यूज में आया हुआ है वैदिक हिस्ट्री या वैदिक एरा का कुछ कुछ नॉलेज कुछ कुछ क्वेश्चंस. तो दैट यू नीड टू नो. और बहुत लिमिटेड टाइम फ्रेम भी रहता है हम लोग के पास. तो हर चीज हम लोग स्पेसिफिकली अच्छे से नहीं पढ़ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल प्रीलिम्स के लिए भी सी की लक्ष्मीकांत के जो एंड के चैप्टर्स हैं कोलिशन पॉलिटिक्स है ये सब है दैट्स नॉट वेरी मच रिक्वायर्ड बट बुक में है. एंड Right. बुक में है तो ऐसे हमको बचपन से पढ़ाया जाता है कि बुक में है तो पढ़ना ही है तो कभी कभी उसमें हम टाइम वेस्ट कर देते हैं. जी. वो अवॉइड करने के लिए पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है और Mhm. कहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं. Right, right. Very rightly said. In fact, Aryaman, we have यस सर. discussed prelims, we have discussed mains. चलिए अब थर्ड स्टेज पे तरफ आते हैं, द इंटरव्यू स्टेज. अब इंटरव्यू में व्हेन वी लुक एट इट एनालिटिकली, एक एनालाइज करते हैं एज अ पर्सन हु इज एसोसिएटेड विद द यूपीएससी एग्जामिनेशन. जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है कि किसी भी कैंडिडेट को प्रीलिम्स में कॉन्सेप्ट्स और उसका एप्लीकेशन पूछा जाता है, मेंस सर. में उसी कॉन्सेप्ट का एनालिसिस पूछा जाता है, और यस सर. इंटरव्यू तक आते आते उसी कॉन्सेप्ट पे आपको एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन बनाना है जो आप अच्छे लैंग्वेज में, अच्छे बॉडी लैंग्वेज के साथ आप कम्युनिकेट कर सके. यस सर. हाउ डिड यू एग्जैक्टली प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यूज, बिकॉज वो काफी दफा मेक और ब्रेक हो जाता है किसी भी कैंडिडेट के प्रिपरेशन के दौरान. Yes, sir. Definitely. I though the marks are not out right now, जी. so I don't know what marks did I get for interview, but I can say this from my experience कि इंटरव्यू का जो स्टेज था वो मेरे प्रिपरेशन का बेस्ट स्टेज था. और बहुत फन रहता है इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना मतलब इंक्विजिटिव रहता है इंटरव्यू. जी. फॉर एग्जांपल मुझसे चेयरमैन ने बहुत इंक्विजिटिव बहुत आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस पूछते हैं फॉर विच यू कैन नॉट प्रिपेयर. And जी. if you cannot prepare, like you have to prepare your DAF, you have to prepare about yourself, your district, your state. वो सब तो ठीक है, but कभी कभी ऐसे questions मुझसे पूछे थे कि what would happen if G2 occurs? For G2 is in if US and China join hands, what would happen to India and India's interest? So a very good question. राइट. And you can say n number of things in this, and they give you time to say these things. तो आई वुड से बहुत आई वुड से कि जब सिलेबस नहीं रहता है तो बहुत पढ़ने में मजा आती है. एंड इतनी मैंने बुक्स पढ़ी इंटरव्यू के लिए इतना मजा आया मुझे. युवल नोआ हरारी की नेक्सस थी हाँ. लास्ट ईयर या लास्ट लास्ट ईयर लॉन्च हुई थी. जी. आई वांटेड टू रीड इट बट मेंस का टाइम में टाइम ही नहीं मिल रहा था बट इंटरव्यू के लिए था. एंड ऑल्सो लकीली माई इंटरव्यू वाज ऑल्सो इन मार्च तो बहुत टाइम था मेरे पास. जी. तो नेक्सस पढ़ ली थी मैंने. उससे मुझे ऐसे लगा कि हाँ मुझे हेल्प हो रहा है. अभी एआई का काफी बातें चलेंगी इंटरव्यू में तो उससे हेल्प हो सकता है. जी. तो रघुराम राजन सर की बुक है ब्रेकिंग द मोल्ड.
अबाउट व्हाट इंडियन इकोनॉमी नीड्स टू डू, वो बुक मैंने पढ़ी थी। बेसिकली आई एम जस्ट सेइंग, आई एम नॉट सेइंग ये पढ़नी पड़ती है इंटरव्यू के लिए, आई एम जस्ट सेइंग कि मुझे बहुत इंटरेस्ट था, मुझे बहुत टाइम मिल रहा था, मुझे बहुत मजा आ रहा था इंटरव्यू की पढ़ाई करने के लिए। जी। तो इंटरव्यू के स्टेज में एज यू राइटली सेड, बहुत हमारे पास टाइम नहीं, जैसे अभी हम बहुत ही लेजरली बात कर ले रहे हैं सब बातों में, देयर इज नो टाइम बाउंड। वहां पे आपको आधा घंटा रहता है, द चेयरमैन कीप्स चेकिंग हिज वॉच ऑल द टाइम कि कितना टाइम ले रहा है सामने वाला बैठ के मेरा। तो बहुत आर्टिकुलेट भी रहना पड़ता है, बट अगर आपके पास बहुत ब्रॉड डोमेन है तो प्रोबेबली आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाते हैं इंटरव्यू में। और अगेन आई वुड से कि कोई अटेम्प्ट करना जरूरी नहीं है सारे क्वेश्चंस। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जिनने एटलीस्ट आई गेस, एक मेरा फ्रेंड है, उनने बोला था कि उनने 50% क्वेश्चंस में बोल दिया कि आई डोंट नो सर, आई हैव टू रीड अपॉन इट, और उनकी रैंक काफी अच्छी आई है इस बार। तो आई वुड अगेन से कि बहुत फन प्रोसेस है, इट इज कम्प्लीटली डिफरेंट, ईच स्टेज इज अ डिफरेंट एग्जामिनेशन इन इटसेल्फ। प्रीलिम्स में दे वांट टू जस्ट चेक कि भाई if you can uh, I mean pick out the right option, if you can be a detective. Mains में they want to check कि अच्छा, if you get a question from tomorrow you'll be an officer, if you get a question from Lok Sabha, a member asks you a question, would you be able to draft an answer for that? And interview में they just check if the person has that high order thinking skill, and if the person is well articulated or not, or if he has an interest. The 7 parameters that are given in the syllabus for interview, that they check in interview. So I would say that yeah, uh, the knowledge of prelims and mains definitely helps in the interview stage. एनी अदर स्पेसिफिक प्रिपरेशन दैट यू डिड? क्योंकि चलिए, नॉलेज तो एक पार्ट रहा, ओपिनियन, एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन एक पार्ट रहा, पर उसको कम्युनिकेट कर पाना इन हाँ। ल्यूसिड लैंग्वेज, प्रैक्टिस हम्म। ब्रेविटी दैट वी कॉल इट, हाँ, ब्रेविटी इज द जूल ऑफ द इन्फॉर्म्ड। आपको हम्म। कम टाइम पे ज्यादा कंटेंट कहना है, तो हाँ। उसके लिए कुछ स्पेशल प्रिपरेशन किया था आपने? सर, फॉर प्रिपरेशन आई वुड से द मोर एक्सपोजर यू गेन फॉर, बट जैसा मुझे लगा था फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस बहुत आइसोलेटेड प्रिपरेशन किया था मैंने। ज्यादा लोग से बिल्कुल बात नहीं करता था, एक या दो मेरे फ्रेंड्स थे, उनके साथ मेरा ग्रुप बना हुआ था, उनके साथ हम जितना भी डिस्कस करते थे उतना करते थे। बट फॉर इंटरव्यू आई वुड से आइसोलेटेड प्रिपरेशन थोड़ा बैकफायर करता है इंटरव्यू में। आपको एक पीपल पर्सन होना पड़ता है वहां पे, और अगर आप आइसोलेटेड रहते हैं तो यू डेफिनेटली लैक ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, you Sure. definitely lack on the tone that you're presenting or projecting on your subject that you're speaking to, and you definitely lack the body language that you require in the interview. Sure. You may start fidgeting, अगर आप isolated prepare करते होंगे तो आप, मे बी आपका पैर हिलता है तो you may start fidgeting, you may get nervous there, you may sweat a lot. बट अगर आप सर्कल्स में इन एंड आउट हो रहे हैं, आप सर्कल्स के साथ हैंग आउट कर रहे हैं, तो वो इंटरव्यू में हेल्प करता है। फॉर extrapolating from this only, मैंने preparation में I just tried to widen my exposure। बहुत मैंने, जिनका भी मेंस हो रहा था, एक ऐसे ग्रुप्स बन जाते हैं तो उसमें मैं काफी एक्टिव था। आई वुड इन हियर, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड टाइम टू मेंशन स्टडी आईक्यूज हेल्प एज वेल इन द इंटरव्यू प्रोसेस, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में, मतलब फ्रॉम द स्टडी आईक्यू टीम। और जो चीफ मेंटर है अनिल स्वरूप सर, वो तो आई वुड से दैट he helped so much in the interview process. He used to conduct weekly classes for us, or weekly, I wouldn't say it's a class, I would say the elocution session or kind of something. He would pose questions to us, and he would ask us to answer those questions like we would answer them in the interview. And right there, right then and there, he would say that, oh, you've answered wonderfully, or you just point out that, why don't you put this sentence that you've spoken at the end at the very beginning, or why don't you use these words, or why don't you use these articles or these examples. So that way, if there is a mentor that is in the journey, in the interview as well, that helps a lot. And I think, yeah, Anil Swarup sir did help a lot in this process, and I was able to, his guidance was very precise and not Very. vague at all. Mhm. Extremely precise guidance, I would say, like a homing missile the guidance was. And I was able to inculcate those pointers that Anil Swarup sir suggested to me very easily into my interview process. जी। In fact, I agree with you. Anil Swarup sir is career bureaucrat who brings a wealth of experience to the table. और Exactly, yes. बहुत ही सिंसियरिटी के साथ आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि ना सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स, Hmm. बट अस फैकल्टी मेंबर्स आल्सो gain so much when we interact with him. So it's a blessing to have him around us here in That's at it. Study IQ. Going forward Yes. in the discussion, Aryaman, what was the biggest challenge that you faced? क्योंकि देखिए, यूपीएससी का Hmm. प्रिपरेशन ऐसा है कि वो साइन वेव जैसा है, कभी भी स्ट्रेट लाइन में तो चलेगा नहीं। तो वो लो मोमेंट्स के टाइम Hmm. आपने अपने आप को कैसे संभाला?
डेफिनेटली सर, लो मोमेंट्स बहुत आए थे। जी। मेंस नहीं हुआ था मेरा पहली बार में, और मैं बहुत डिजेक्टेड था। ऑल्दो लुकिंग बैक, प्रिपरेशन बहुत लिमिटेड थी मेरी उस समय, बट वो है, आप ऐसा बना लेते हैं कि आप निकाल ही लेंगे। और जब मेंस नहीं होता है तो देन यू फील डिजेक्टेड। उसके लिए आई वुड से कि योर फैमिली मेंबर्स, फॉर मी इट वर माय फैमिली मेंबर्स हु हेल्प्ड मी अ लॉट, who kept like pushing me, and also my mentors were there, and lot of mentors and lot of friends there who became mentors, and who were my guides in this process. Like, nahi nahi, just an exam, just an exam, you have to keep that in your mind, it's just an exam. And I think if you have a backup ready, although I did not have a backup ready, but I felt in those hours of need, in those hours of dejection, that if I had a backup ready, I would not be this dejected right now. हम्म। So I would say that backups help a lot. Second would be, some people have that mental resilience. Let's see कि नहीं हो रहा है, but they are resilient कि भाई करना है तो करना ही है, और फिर वो जी। निकाल लेते हैं बाद में कभी आके। देखो, रेजिलियंस भी चाहिए रहता है। वो आई थिंक टाइम के साथ यूपीएससी डेवलप करा देता है बच्चों में अपने। ये जो भी एग्जाम देते रहते हैं, थोड़ा कंसिस्टेंटली एग्जाम देते रहे, उनमें रेजिलियंस आ जाता है कि यार करना है। और इफ इवन इफ दिस डज नॉट वर्क आउट, अगर वो रेजिलियंस आ गया है माइंड में, दैट इज द बिगेस्ट लर्निंग यू कैन टेक। अभी ऑफिसर्स भी जो बनेंगे, उन वो भी रेजिलियंट ही रहेंगे। आपके पास इतने चैलेंजेस आते हैं फील्ड में, जी। आपको रेजिलियंट रहना ही पड़ता है। तो वही कि एग्जाम, एक एग्जाम से कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है एक साल के लिए, दैट इज कम्प्लीटली फाइन। एंड पीपल, मैं बहुत अपने ऊपर बहुत हार्श रहता था कि क्यों नहीं हो रहा है, आई एम एन इडियट, मुझे ही समझ नहीं आ रहा है, बाकी सब तो कर लेते हैं। तो वो एक जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है, वो बहुत हार्मफुल रहता है। उससे कि वो अवॉइड करें, जितना हो सके वो अवॉइड करना चाहिए। जी। जी। यू मेंशन्ड अबाउट बैकअप आर्यमान। उस पे एक जरूर एक सवाल बनता है कि एक स्टूडेंट को कब बैकअप के बारे में सोचना चाहिए। ऑब्वियसली बहुत हम्म। पर्सनल डिसीजन होगा हर के लिए। हम्म। एज अ सक्सेसफुल कैंडिडेट व्हाट वुड यू एडवाइस, अगर आपका पहला अटेम्प्ट के बाद इन केस नहीं हुआ, वुड यू गो फॉर हम्म। बैकअप, और वुड यू वेट फॉर द थर्ड फोर्थ फिफ्थ अटेम्प्ट और उसके बाद हम सोचे कि प्लान बी हमारा हम्म। क्या Ideally, sir, although disclaimer, complete disclaimer, I did not approach it like that. What people do are they get through the placements. Engineers होते हैं तो they get into the placement. जो भी उनका सेल रहता है, they get placed in a company, और वो वहाँ पे 2 साल अच्छे से adapt करते हैं. Then they start giving the exam when they are around well into the service, 2 years into the service. वो कर सकते हो आप। और यू कैन गिव सम अदर एग्जाम। फॉर एग्जांपल, कुछ लोग ये करते हैं कि आरबीआई का एग्जाम दे देते हैं, पहले वो क्लियर कर लेते हैं और फिर यूपीएससी में आते हैं, ताकि एक बैकअप रहता है। और फॉर कोई कुछ लोग यूपीएससी से दे देते हैं पहले, फिर यूपीएससी में आते हैं, ताकि एक बैकअप रहता है। दैट कैन बी एन ऑप्शन, ऑल्दो आई डिड नॉट डू एनी ऑफ द अबव। मैं थोड़ा ऐसे, आई वुड से बहुत ही फुल फ्रंटल चला गया था इसमें। वुड नॉट एडवाइज एनीवन टू डू दैट। बट हाँ, अगर आप ऐसे आ रहे हैं जो फ्रेशर्स रहते हैं, जनरली आर्ट स्ट्रीम के जो फ्रेशर्स रहते हैं, वो जनरली डू नॉट गो फॉर प्लेसमेंट्स। दे बिकॉज दे आर ऑल्सो वेरी वेल वर्स विथ ह्यूमैनिटीज, तो दे हैव दैट नैक कि वो जल्दी कर लेते हैं यूपीएससी। तो आई वुड से थ्री अटेम्प्ट्स, यू शुड गिव योरसेल्फ 3 अटेम्प्ट्स। है। उसके बाद इफ इट इज नॉट वर्किंग आउट, आप यूपीएससी ड्रॉप मत करिए, आप पॉज करके कुछ देख लीजिए ऑल्टरनेटिव। या अगर 3 अटेम्प्ट्स में ऐसा भी होता है कि इफ यू आर कंसिस्टेंटली राइटिंग मेंस अगेन एंड अगेन, तो आपके पास एक वो भी आ जाता है कि आपको उतना नीड नहीं रहता है कि आप दिन में 12 घंटे बैठ के पढ़ें। जी। तो आप फिर कुछ जॉब ढूंढ के आप जॉब ज्वाइन भी कर सकते हैं, जॉब के साथ भी प्रिपरेशन कर सकते परफेक्ट। बहुत इंटरेस्टिंग और हैं। बहुत ही इंफॉर्मेटिव डिस्कशन रहा है ये आर्यमान। आई एम श्योर आवर स्टूडेंट्स विल ग्रेटली अप्रिशिएट ऑल द टिप्स एंड द ट्रिक्स दैट आर कमिंग देयर वे। बट बिफोर आई लेट यू गो आर्यमान, थैंक यू हमारे पास कुछ प्रश्न सर। हैं जो कुछ स्टूडेंट्स ने भेजे हैं। ऑब्वियसली कुछ स्टडी आईक्यू के मेरे को फैकल्टीज भी आपके लिए कुछ क्वेश्चन है, एक रैपिड फायर राउंड जैसा इसको हम ट्रीट करेंगे। ओके, आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस, द श्योर। फर्स्ट आंसर दैट कम्स टू माइंड, शूट इट अवे। ऑलराइट, सो द फर्स्ट क्वेश्चन सर। दैट आई हैव फॉर यू यस इज, सर। which book would Aryaman recommend that an aspirant should compulsorily read जो उसके सिलेबस का भाग ना हो? कौन सा ऐसा किताब I have a recency bias for this. I would say Raghuram Rajan sir's Breaking the Mold. वो है? ओके, बहुत, it is an extremely interesting book. So I would say that Breaking the Mold by Raghuram Rajan sir, and yeah, परफेक्ट। that is very good. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, one quote that kept Aryaman going. Uh,
I would say the more I learn, the less I know. That is, I think, that is the good quote that kept me going. It could well be the essay topic for the coming years, huh? The way it is going. Definitely, yeah, definitely can Okay. be. Essay or ethics? Which one was difficult for you? I would say, given the marks that I'm getting, both of them were very sticky for me. Although the marks are not out for this time, I would say equally difficult. I would say ethics was a tad bit more difficult for me this time. Okay. And when we talk about CSAT, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ज्यादा डिफिकल्ट है या मैथमेटिक्स ज्यादा डिफिकल्ट I would say math. I would say math है? is a bit more difficult. आपने भी Yeah. साल 2023 का पेपर देखा होगा, आई एम श्योर. Luckily, I would also suggest people to have a good mixture of questions. आप ऐसा मत attempt करें कि सिर्फ maths ही का पढ़ के जाएं या सिर्फ reading करके जाएं. उससे that does not suffice now. आपको सब थोड़ा तो सब आना चाहिए. That also is what the commission wants from us कि थोड़ा सब आ जाए. तो आप सब करके जाइए CSAT के लिए. बहुत बढ़िया. एंड द फाइनल क्वेश्चन दैट आई हैव फॉर यू इज विराट कोहली या रोहित शर्मा, क्या है फेवरेट आर्यमान का? बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे ये. Although I still remember the knock 2022 में दिवाली के जस्ट पहले इंडिया पाकिस्तान का मैच था. मुझे लगा था मैच हारने वाले हैं हम ये बहुत गंदे से. पर जब विराट कोहली का नॉक था उसके बाद आई वाज लाइक कि यार ये बहुत ही क्रेजी प्लेयर है. इन फुल रिस्पेक्ट टू विराट कोहली. ऑल्दो आई आल्सो लाइक रोहित शर्मा. उनके हुक शॉट्स तो उनके पुल तो अलग ही रहते हैं. I think you're ending on a note of on a very diplomatic note, almost primed up to be a part of the Indian Foreign Service. But on that note, Aryaman, thank you so much for joining us here at Study IQ. On behalf Thank of you. the entire leadership, the team, faculties, बाकी सारे लोग जो हमारे स्टडी IQ के साथ जुड़े हैं, उन सब की तरफ से आपको शुभकामनाएं. May you have a successful, fulfilling career ahead in the service of the nation as part Thank of you. Thank the film of the country. और जैसा आजादी का अमृत महोत्सव कहा जाता है कि उसमें सबसे इम्पोर्टेंट किरदार प्ले करेंगे हमारे देश के ब्यूरोक्रेट्स. I hope you, sir. you have a fantastic time ahead serving the people of the country. Thank you. Thank you, Thank sir. you so Thank you much, for having me. Ariman, for joining us here on Thank Study you. IQ today. Honored to be here, sir. Thank Thank you. you. All right. Mohit ji, we can close the interview. Ariman, thank you once again for joining. I hope it was a good Thank you. discussion. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you for Bye. having me. Thank you. Bye. Bye. स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन.